ایک کسان کے گھر میں ایک چڑیا رہتی تھی جو انسانوں کی بولی جانتی تھی۔ وہ جو کچھ دیکھتی تھی بیان کر دیتی تھی۔ کسان اکیلا رہتا تھا، اس لیے وہ چڑیا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ایک دن کسان بولا کہ میری پیاری چڑیا، تم خوش تو ہو نا میرے گھر میں رہ کر؟ تمہیں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے؟ تم خوش رہا کرو۔ میں بہت خوش ہوں یہاں پر آپ کے ساتھ رہ کر۔ ٹھیک ہے، تم گھر کا خیال رکھنا، میرے آنے تک میں کام پر جا رہا ہوں۔ کسان یہ بات کہہ کر کام پر چلا جاتا ہے اور اس کے جانے کے بعد چڑیا کہتی ہے کہ میں کیا یہاں اکیلی بیٹھ کر کروں گی، باہر جا کر بیٹھتی ہوں۔ چڑیا باہر سین میں بیٹھی ہوتی ہے کہ تھوڑی ہی دیر بعد ان کی ہمسائی آتی ہے اور کہتی ہے چڑیا، تم ایسے اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ تمہارا مالک کہاں ہے؟ چڑیا بولی وہ کام پر گئے ہیں، میں اندر بور ہو رہی تھی اس لیے آ گئی یہاں۔ تم اکیلی کیسے رہ لیتی ہو اس گھر میں؟ تمہارا مالک تو کام پر چلا جاتا ہے، تم بور نہیں ہوتی؟ تم میری طرف آ جایا کرو، ہم دونوں باتیں کریں گے۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں نے آگے جانا ہے، مجھے کام تھا۔ چڑیا کی ہمسائی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ چڑیا وہیں بیٹھی آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جب شام ہوتی ہے، چڑیا گھر میں اکیلی بیٹھی ہوتی ہے اور تھوڑی دیر بعد اس کا مالک آتا ہے۔ آج کیسا رہا تمہارا دن؟ میں تو کام میں بڑا مصروف تھا اور مجھے آتے ہوئے دیر ہو گئی۔ بہت اچھا گزرا، آج ہماری ہمسائی آئی تھی، میں نے ڈھیر ساری اس سے باتیں کی۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے تو بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے، میں تو سونے جا رہا ہوں۔ کچھ دن ایسے ہی چڑیا اور اس کے مالک کے دن ہنسی خوشی گزرتے ہیں۔ ایک دن چڑیا اور اس کا مالک باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر بعد دوسرے گاؤں سے کسان کا دوست رحیم آتا ہے اور کسان کہتا ہے آج کیسے بھول گئے ہو ہمارا راستہ؟ اتنے دنوں بعد آئے ہو، کیا حال ہے میرے پیارے دوست رحیم؟ تم تو کبھی آئے ہی نہیں، کافی دن ہی لگا دیے آنے میں۔ میں تو بڑی مشکل سے تمہارے گھر آیا ہوں، میں تو اپنی جان بچاتا ہوا وہاں سے بھاگا ہوں، کچھ گنڈے میرے پیچھے پڑے ہیں، تم مجھے اپنے گھر رکھ لو۔ کیسی غیروں والی باتیں کر رہے ہو جو اجازت مانگ رہے ہو؟ تم تو میرے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہو، جب تک چاہو تم یہاں پر رہ سکتے ہو۔ جاؤ ادھر منہ ہاتھ دھو لو، تمہارا حال کیا ہو گیا؟ مجھے یقین تھا کہ تم مجھے رکھ لو گی، اس لیے میں تمہارے گھر سیدھا آ گیا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ مجھے یہاں رکھنے کے لیے، میں بس تھوڑے دن ہی رہوں گا یہاں۔ ایسا کہنے کے بعد وہ منہ ہاتھ دھونے کے لیے چلا جاتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد کسان چڑیا سے کہتا ہے کہ دیکھو چڑیا، اس کے پیچھے گنڈے لگے ہیں، اس لیے تم کسی سے بھی ذکر نہ کرنا کہ یہ ہمارے گھر رہ رہا ہے۔ اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا ہم دونوں ہی گھر میں رہتے ہیں۔ وہ میرا بچپن کا دوست ہے، اس لیے میں اس کا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نہیں بتاؤں گی کسی کو کہ کوئی ہمارے گھر مہمان آیا، میں بھلا پاگل ہوں جو بتاؤں گی؟ کسان چڑیا کی بات سن کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ چڑیا اسی جگہ بیٹھی رہتی ہے۔ کچھ دن گزر جاتے ہیں، رحیم بھی انہی کے گھر میں موجود ہوتا ہے۔ چڑیا ایک دن گھر کے باہر بیٹھی ہوتی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد دو آدمی گزر رہے ہوتے ہیں، وہ دونوں رک جاتے ہیں اور ان میں سے ایک کہتا ہے ننھی چڑیا، کیا تم لوگوں کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہوا ہے؟ آیا ہوا ہے تو مجھے بتاؤ، میں نے ملنا ہے اس سے۔ جی جی، میرے مالک کا دوست آیا ہوا ہے ادھر، وہ اندر ہی بیٹھے ہیں، آپ مل سکتے ہیں ان سے، جائیں جائیں۔ چڑیا کی بات سن کر وہ دونوں اندر چلے جاتے ہیں۔ اندر کسان اپنے دوست سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ ارے رحیم، تم نے کھانا تو ٹھیک طرح سے کھا لیا ہے نا؟ آج مجھے چھٹی ہے، آج ہم دونوں گھومنے چلیں گے۔ اتنی دیر بعد وہ دونوں آدمی بھی آ جاتے ہیں۔ چڑیا تو صحیح بول رہی تھی، رحیم اندر ہی ہے۔ رحیم، تم وہاں سے بھاگے کیوں ہو؟ پنچایت تمہارا ادھر انتظار کر رہی ہے، تم چوری کر کے یہاں پر چھپ گئے ہو، بہت مشکل سے ملے ہو تم، اب چلو ہمارے ساتھ۔ اگر تم وہاں سے نہ بھاگتے تو تمہاری سزا میں کمی ہو جاتی، اب تمہیں ڈبل سزا ملے گی۔ ارے یہ کیا چوری کر کے آئے؟ یہ ایسا آدمی نہیں ہے، تم دونوں غلط بندے کو اٹھانے کے لیے آئے ہو، اس نے تو چوری کبھی نہیں کی۔
अरे आपको क्या पता, ये हमारे गांव से बहुत बड़ी चोरी करके आई, ये एक चोर है। रहीम चलो हमारे साथ वरना हम तुम्हें यहीं मार देंगे। फिर रहीम उनके साथ चल पड़ता है और पीछे से किसान आवाजें देता रहता है कि ये बेकसूर है। किसान परेशान होकर वहीं पर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर बाद चिड़िया भी आ जाती है और चिड़िया किसान से बोलती है कि आप चुपचाप क्यों बैठे हो? क्या हुआ है? और रहीम कहाँ है? क्या परेशानी है? बस चुप कर जाओ। छोटी सी थी तुम जब मैं तुम्हें लाया था और इतने तुम्हारे नखरे उठाए, इतने लाड़ प्यार से तुम्हें पाला। तुमने तो मुझे ही धोखा दे दिया। मेरा दोस्त चोर नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने उसे पकड़वा दिया। तुमने अच्छा नहीं किया। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो, बस एक बार आइंदा नहीं करूंगी। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। बस तुम चली जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। क्या आप मुझे एक बार भी नहीं माफ कर सकते? बस एक मौका दे दे, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे मत निकालें घर से। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं रख सकता। तुमसे अच्छा तो मैं किसी और परिंदे को रख लेता, वो मेरे साथ बेवफाई ना करता। किसान की बात सुनकर चिड़िया बहुत दुखी होकर वहां से चली जाती है। किसान वहां पर खड़ा होता है और कहता है कि मेरा दोस्त भी नहीं रहा और चिड़िया भी नहीं रही। मैंने उसे बहुत प्यार से पाला था, लेकिन वो यहाँ रखने के काबिल नहीं थी। चिड़िया पूरे एक दिन बहुत ज्यादा भटक रही थी, कभी किसी जगह जाती तो कभी किसी जगह। एक दिन वो अपनी हमसाई के पास आई और कहने लगी, कैसी हैं आप? आप मुझे रख लेंगी? मैं आपकी हर बात माना करूंगी, आप मुझे रख लेना। नहीं नहीं, मुझे पता है तुमने किसान के साथ अच्छा नहीं किया। तुम तो घर की बातें बाहर बताती हो, मैं नहीं तुम्हें रख सकती। नहीं नहीं, मैं आपकी बातें बाहर नहीं बताया करूंगी, आप मुझे रख ले। वो तो किसान ही अच्छा नहीं था, मुझे अक्सर खाना भी नहीं देता था। कर दी ना तूने धोखा देने वाली बात। किसान कितना तुमसे प्यार रखता था और अब तुम उसे ये कह रही हो कि खाना नहीं देता था। मैं तुम्हें नहीं रखूंगी, कल को तुम भी मेरे साथ ऐसा ही करोगी। निकलो मेरे घर से, जाओ। वो हमसाई की बात सुनकर वहां से भी चली जाती है। हमसाई उसे नहीं रख रही थी क्योंकि उसने किसान के साथ अच्छा नहीं किया था। वो सोच रही थी कि मेरे साथ भी ऐसा करेगी। फिर चिड़िया एक जगह जाकर अपना छोटा सा घोंसला बनाती है। वहां पर बैठी ही होती है कि तोता उसकी तरफ आते हुए दिखाई देता है और आकर कहता है कि क्या हुआ है चिड़िया, तुम इस छोटी सी जगह पर घोंसला बनाकर क्यों बैठी हो? तुम तो एक किसान के घर में रहती थी ना, ऐसा क्या हुआ कि तुम यहाँ पर आ गई? क्या बताऊं तोते भाई, इंसान तो होते ही बुरे हैं। मुझसे छोटी सी गलती हुई और उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरी सिर्फ ये गलती थी कि किसान का एक दोस्त आया हुआ था। उसने मुझे मना किया कि उसके बारे में किसी को ना बताना। मैं एक दिन बाहर बैठी हुई थी, दो आदमी आए मेरे पास और पूछने लगे कि तुम्हारे घर कोई मेहमान तो नहीं आया। मैंने कहा आया है, और वो उस मेहमान को लेकर चले गए। इसमें मेरी क्या गलती है बताओ? और मैं हमसाई के पास गई और उसने भी मुझे नहीं रखा। सब बुरे हैं, इंसान होते ही बुरे हैं। तुमने भी तो अच्छा नहीं किया। अगर उसने तुम्हें मना किया था तो तुमने उसकी बात बाहर क्यों बताई? ऊपर से कह रही हो इंसान बुरे हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब बैठी हो ना वीराने में, कितना प्यार रखता था वो तुम्हारा, हर चीज तुम्हें मुहैया करता था। अब अफसोस किस बात का? जो तुमने किया है वही तुम्हारे सामने आया है। इंसान ऐसे ही होते हैं, वो अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं। किसी परिंदे को घर से बाहर भी निकाल सकते हैं, वो अच्छे नहीं है। ये तुम्हारी बेवकूफी है। अगर मैं अपनी अक्लमंदी से इंसानों में रहकर दिखाऊं तुम्हें, तो क्या मानोगी कि इंसान अच्छे होते हैं? तुम आजमा कर देख सकते हो, वो तुम्हें भी घर से निकाल देगा, फिर तुम मेरे पास आओगे। अब जाओ, तुम देख लो। ये बात सुनकर तोता किसान की तरफ चला जाता है और चिड़िया कहती है कि ये 2-3 दिन बाद खुद ही मेरे पास आएगा और कहेगा कि तुम ठीक कह रही थी। चलो, मुझे क्या,
फिर चिड़िया वहीं अपने छोटे से घोंसले में बैठी रहती है। उधर किसान चिड़िया के घोंसले को बाहर फेंक देता है और जहां चिड़िया बैठा करती थी उस जगह को देखकर परेशान हो रहा होता है। किसान वहीं बैठा होता है कि कुछ ही देर बाद वहां पर तोता भी आ जाता है और आकर किसान से कहता है कि कैसे हो आप? आप बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। आप मुझे बताएं, मैं आपकी परेशानी को समझ जाऊंगा। आप तो बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे चिड़िया ने धोखा दिया है, मेरी सोच भी नहीं थी कि वो ऐसा करेगी। मैं तो उसका बहुत ख्याल रखता था, मैंने कभी उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। उसने मुझे धोखा दिया। वो घर की बात बाहर बताती थी और मैंने उसे जाने को कह दिया। आप मुझे रख ले, मैं आपके साथ ऐसा नहीं करूंगा। मैं आपकी हर बात मानूंगा, जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा और घर की बात बाहर नहीं बताऊंगा। ठीक है, वैसे भी मैं अकेला रहता हूँ और मेरा दिल नहीं लगता इस घर में। तुम मेरे साथ रहोगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। ऐसा कहकर फिर किसान वहां से चला जाता है। तोता किसान के घर में आकर बहुत खुश होता है। तोता सोचता है किसान तो अच्छा है, चिड़िया की गलत सोच थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। तोता और इंसान दोनों आपस में बहुत खुश रहते हैं। एक दिन वो दोनों इकट्ठे बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इंसान कहता है कि तोते तुम बहुत अच्छे हो, तुमने कभी घर की बात बाहर नहीं बताई। जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसे ही करते हो। कभी तुमने मेरे साथ धोखा नहीं किया। इतने दिन हो गए तुम आए हुए हो, मेरे घर में बहुत रौनक लग गई है। अब हम सारी जिंदगी इकट्ठे रहेंगे। यह तो आपकी मेहरबानी है और आपका बड़ापन है जो आपने मुझे अपने घर में रखा। आप बहुत अच्छे इंसान हो। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। हम दोनों इकट्ठे रहेंगे सारी जिंदगी। आप जैसा सच्चा इंसान मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। वैसे आज तो तुम बड़े खूबसूरत लग रहे हो। तुम वैसे ही मुझे बहुत प्यारे लगते हो। तोते और इंसान के कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन तोता कहीं से आ रहा होता है और उसे सामने चिड़िया आती हुई दिखाई देती है। रुको चिड़िया रुको, मेरी बात सुनकर जाना। नीचे बैठो। कैसे है तोते भाई? और किसान कैसा आपके साथ बर्ताव कर रहा है? कहीं आपको तो भी घर से बाहर नहीं निकाल दिया उसने? उसने मुझे नहीं निकाला। मैं ज्यादा नहीं बोलता, अपने मालिक का भेद नहीं खोलता। जो कुछ मेरा मालिक कहता है वही करता हूँ। तुम तो बहुत खुश लग रहे हो। मैंने तो सोचा वो किसान तुम्हें निकाल देगा घर से। देखो चिड़िया, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि अपने मालिक की हर बात माना करो। जो वो कहे वैसा ही करो। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और अपनी मर्जी की। देखो मैं अपनी अक्लमंदी की वजह से वहां पर कितना खुश हूँ। शायद आप ठीक कह रहे, मैं ही गलत थी। अगर उस दिन गुंडों को मैं ना बताती कि किसान का दोस्त अंदर है तो शायद मैं उस घर में आ जाती। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। चलो खैर, अब क्या हो सकता है। अब सही समझी ना? अब आ गई तुम्हारी अकल में बात। आइंदा ऐसा मत करना। एक जगह से दूसरी जगह बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है तोते भैया, आज मुझे समझ आ गई कि इधर की बातें उधर नहीं करते। अच्छा मैं चलती हूँ, आपको भी काम होगा। ये बात कहकर चिड़िया अपने घोंसले की तरफ चली जाती है और तोता अपने घर की तरफ चला जाता है। चिड़िया को तोते की बात समझ आ गई थी कि कभी अपने मालिक से बेवफाई नहीं करनी चाहिए। तोता हमेशा के लिए किसान के साथ रहा और खुश रहने लगा।